2017. And why not before 2017? 2016 क्यों नहीं, 2015 क्यों नहीं, 2008 क्यों नहीं? और हम 2008 के पहले की बात क्यों नहीं करते? और 2008 से लेके 2016 तक की भी बात नहीं करते? Why we are very much, everyone is pretty much adamant about 2017 onwards? कोई क्लू किसी को? हम्म. Okay. So Deepak has no idea. Okay. So let me explain that why we don't talk about anything before 2017. Since 1990, if you are going to search on Google, you are going to get papers from 1919 to 2008. Genuine papers. Paper based exam hota tha. That exam used to be paper based exam. But that paper used to have two sections. One is going to be VA plus LR and QA plus DI. ठीक है. और उस टाइम के जो सेट आते थे डीआई और एलआर के, वो आज के जमाने में इररिलेवेंट है. उस टाइप का सेट कुछ नहीं आता. ठीक है. इवन क्यूए हैज चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम 2008 टू 2017. नाउ फ्रॉम 2009 टू 2016 दे नेवर रिलीज द पेपर. इस टाइम पे और जो करंट फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं तीन सेक्शन वाला, दैट आई थिंक दैट स्टार्टेड इन 2015. इन 2015 देयर वर थ्री सेक्शंस, क्यूए डीआई एलआर. ठीक है. So, but CAT never released a paper for 2015 and 16, and they started releasing their paper from 2017. So, official paper जो है वो 2017 onwards ही available है. ठीक है. और 2008 के पेपर जो है उसमें if you are going to solve the whole paper, you are going to find few questions that are good. Apart from that, there are a lot of things that are irrelevant. उस टाइम जो पैसेज का साइज होता था, आरसी की बात में अगर करूं, तो जो पैसेज का साइज होता था वो इस टाइम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होता था. सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. मेक सेंस कि अब क्या, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट 2017 ऑनवर्ड्स. So 2017 onwards, we had similar type of quant paper, similar type of VA paper, similar type of LR paper. मतलब वही over the period of a time, the in 2017, 18, 19, it is a 3 hour exam. उसके बाद in COVID it has become a 2 hour exam. लेकिन जो type of questions थे वो change नहीं हुए. Number of questions has changed. टाइमिंग्स पर सेक्शन हैज चेंज, लेकिन जो ओवरऑल पैटर्न, ओवरऑल फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत चेंज नहीं हुआ. मोर और लेस सिमिलर टाइप ऑफ सेट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम 2017. एंड आई थिंक इन 2016 एंड 15 अगेन वी गॉट द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन पेपर अवेलेबल नहीं है. ठीक है. इसलिए 2017 onwards क्लियर. And from 2017 to 2025, we have a total of 129 LR, DILR sets. And out of those, we had 78% LR. मतलब DI बहुत ज्यादा आ ही नहीं रहा है, क्लोज टू 1/5 DI. मतलब अभी के हिसाब से देखो तो एक सेट आउट ऑफ every slot we are going to have one set of DI. Apart from that, 4 sets are going to be LR only. ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है. Now, what we have done, so grouping and assignments. Sarvash, I didn't understand your question. मतलब मैं प्योर डीआई वाले जो सेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ. प्योर डीआई वाले सेट्स जो हैं वो मोर और लेस वैनिश हो चुके हैं. ज्यादा डीआई, प्योर डीआई तो खत्म ही टाइप से है. You are going to have hardly one set of pure DI. Apart from that, you are going to get DIA. If DI is coming, that is part of LR only. So pure LR or LR DI, that is part of LR. Pure DI is hardly one set out of 5 sets. The most important topic that we are talking about, that is grouping and assignment. ये सबसे ज्यादा पूछा गया है among all the topics that we have seen.
Grouping and assignments is a topic that has been asked a maximum number of times. 1 in 6 sets is your grouping and assignment. ठीक है, ये अपना टोटल माहौल है पेपर का. So in 2017 we had 2 slots. ठीक है, 2 स्लॉट थे. 2 स्लॉट का मतलब 8+8. So this is a pattern of 8+8. This is a pattern of 8+8. In 2018, we had 16 sets, 8+8. In 2019, there are 2 slots, 8+8, 8 sets in each slot. In 2020, exam pattern changed, 3 slots, 555. And here it is going to be 444. Here it is going to be 444. Here again it is going to be 444. And after that, 555. ठीक है ना? तो 12 सेट थे और इसके बाद यहाँ पे 15 सेट हो गए, मतलब 5+5+5 and 5+5+5. 2024 was a year जहां पे suddenly we have seen a jump of DI. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 7 सेट हैं और इसके अलावा तुम कहीं भी देखो 7 सेट तो जब 8+8 आते थे तब भी नहीं पूछते थे. सो बेसिकली who made this paper? 24. That is IMK. Who's going to make paper this year? 2025 was made by K. ठीक है. And this is IM24 was IMC, not K. 25 was IM कोई code. 26 is going to be made by इंदौर. ठीक है. 6 साल का कंटिन्यूअस चलता है. सो 26 के पहले इंदौर का बनाया हुआ जो पेपर था दैट वाज 2020. सो इफ आई एम एट योर प्लेस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू? अगर मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले एक 2020 के तीनों सॉल्व उठाऊंगा, वो सॉल्व करूंगा, पेपर एनालाइज करूंगा प्रॉपरली. देखो, आई एम जनरली डोंट रिपीट एवरीथिंग, लेकिन यू माइट गेट सम इनसाइट्स फ्रॉम 2020 पेपर. कुछ इनसाइट्स तो मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कैट में सेट रिपीट नहीं होते? परिता से रिपीट नहीं होते. ठीक है. ठीक है. आई हैव I have seen a set that has appeared twice. In the second one, I would say, I don't remember which year it was repeated. It was a set of 2007-8 and it was repeated. Thin crust pizza wala ek set aaya tha. I think it was in 2018-19. That was copied from 2007-8. उस टाइम मेल फीमेल वेज नॉन वेज वाला बाइफर्केशन था. इस बार चीज बस्ट, थिन क्रस्ट और इस टाइप से कुछ बाइफर्केशन था. यू आर गोइंग टू सी द नंबर्स आर सेम, क्वेश्चंस आर डिफरेंट. लैंग्वेज वाज लिटिल ट्रिकियर दिस टाइम, लेकिन डेटा मोर और लेस सेम ही था. सो इट हैज बीन रिपीटेड वंस. एंड इसके अलावा जो है बाकी, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम द प्रीवियस सेट्स दैट cat has been giving. That's why everyone says that always solve PYQs. इंस्पिरेशन हमेशा लेते हैं ये लोग. उत्सव, I'll tell you one thing. Also, I have been telling this on a regular basis for a long time. कि until unless you have read all the questions, do not pick paper and pen to solve a set. अगर तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो तुम्हें पेपर पेन उठा के करना ही नहीं चाहिए. And when you are going to make this a habit, it will be good.
Second point, need to understand DILR and RC are two different things. Everyone says DILR is similar to RC. Somehow I do agree with it. Somehow I don't. क्योंकि RC in RC we skim, in DILR we don't skim, we read. So when you are reading for the first time, read very slowly and write every pointer that is needed to be noted. उससे तुम्हारा टाइम सेव होगा. Got it? वो बार बार if you are going to skim in DILR, you are going to read it multiple times. And that is going to take a lot of time. क्योंकि DILR दो लाइन का क्वेश्चन नहीं है. DILR is going to be, I would say it is 150-200 words passage. And that is going to easily take, केवल पढ़ने पढ़ने में 2.5 से 3 मिनट चला जाता है. अगर तुम धीरे धीरे पढ़ोगे तो 4 मिनट चला जाएगा एक DILR के सेट को पढ़ने में. ठीक है ना. देवराज, आई वुड से इट्स अप टू यू. तुम्हें अगर उसको एज ए पेपर सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन वाइज करना है, क्वेश्चन वाइज कर लो. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन बट वट एवर यू डू इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई वुड से सॉल्व इट. एंड ऑलवेज वेन एवर यू आर सॉल्विंग, ट्राई टू थिंक ऑफ अ शॉर्टर अप्रोच. क्योंकि रहेंगे, क्योंकि एंड देर इज एवरी सेट दैट गिव्स यू 2 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन फॉर फ्री. हर सेट. कैट में अब वन आउट ऑफ 129 सेट्स, इफ आई एम गोइंग टू टेल यू 129 सेट्स, देर आर गोइंग टू बी एटलीस्ट 100 सेट्स जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो है. और 7 से 8 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन तो हो जाते हैं. बाकी सेट करने में टाइम लगेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि हर सेट जो है वो 10 मिनट में हो जाएगा, नहीं होगा. लेकिन 1-2 क्वेश्चन 10 मिनट में दे देता है. उसके बाद अगले के 2 से 3 क्वेश्चन करने में आदमी को 10 से 15 मिनट लग जाता है. सो आई एम सेइंग मेक यूज ऑफ दोस 2 क्वेश्चंस. And in 10 minutes, getting 6 marks is awesome. ठीक है. अगेन रिमेंबर, DILR इज नॉट ए स्कोरिंग सेक्शन. ये बात ध्यान रखो, DILR स्कोरिंग सेक्शन नहीं है, कभी भी नहीं है, ना कभी था. ठीक है. यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन QA, यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन VA. DILR में ठीक ठाक सा करना है, मतलब 8-9 क्वेश्चन करने. रिमेंबर, आई नेवर आस्क पीपल टू सॉल्व ए सेट, आई ऑलवेज आस्क पीपल टू सॉल्व अ क्वेश्चन. ठीक है. 10 मिनट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, इट्स वेरी गुड. And until unless you are going to read it slowly, you are going to read the questions, it won't help you. और जो एक एक जो होता है, वो जो लोग जनरली जो अप्रोच यूज करते हैं वो DI में यूज होती है. और DI जनरली वैसे नहीं होता है. DI आता ही नहीं है. लुक एट दिस. ग्रुपिंग एंड असाइनमेंट. ग्रुपिंग एंड असाइनमेंट. Look at the weightage of this. 21 sets. Number based logic. 15 questions. मैट्रिक्स बेस्ड 12, शेड्यूलिंग 10. अगर तुम DI की बात करो, स्कैटर प्लॉट, योर बार ग्राफ, टेबल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेट्स वी आर गेटिंग? नॉट अ लॉट. ठीक है. नंबर बेस्ड लॉजिक में आई गिव यू वन फूड फॉर थॉट, 1 पॉइंट, एंड थिंक ओवर इट. और जनरली ये हर साल या हर 2 साल में एक बार ऐसा आता है कि टोटल समेशन इज 11 for 4 numbers, and all four are distinct numbers. What are the possible value of these numbers? A plus B plus C plus D is equal to 11. 4 नंबर का सम 11 है. All 4 of them are natural numbers and all 4 of them are distinct. So इन numbers की value क्या होगी? 1, 2, 3 and 5. इसके अलावा कोई और समेशन पॉसिबल ही नहीं है. सो इनमें से एक नंबर 1 होगा, एक नंबर 2 होगा, एक नंबर 3 होगा और एक नंबर 5 होगा. कौन सा नंबर कौन सा होगा, ये सेट पे डिपेंडेंट होगा. एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी. लेकिन अगर ये चीज आप 30 सेकंड में क्रैक नहीं कर रहे हैं, देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम. क्योंकि ये कई बार किस सेट्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है. टोटल सम इज गिवन एंड इन नंबर बेस्ड लॉजिक you are seeing 15 sets and more or less in every set this type of condition is given. Understood?
In CAT 2018, we got one set of metrics where answer of three questions was same. तुम एक केस बनाओगे सारे आंसर आ जाएंगे एंड मेजोरिटी पीपल डिडंट डू दैट सेट. ठीक है. So basically these are the topics where you need to work on, that is grouping and arrangement. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर बेस्ड लॉजिक जहां पे आपको सम वम टाइप कुछ गिवन होगा, वो सारी चीजें. मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस अ बिट ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड सेट, जो तुम लोगों को टॉपिक टेस्ट में मिल जाएगा. ग्रुपिंग अरेंजमेंट का नंबर बेस्ड में मिल जाएगा, प्लस पीवाईक्यू तो है ही. सो यू आर गोइंग टू हैव रीजनेबली गुड नंबर ऑफ सेट्स. गरिमा, आई वुड से कि uh, if you want to maximize your score, I would say class sheets, daily dose, mocks. I think that would be suffice. And if you want some help, then I would say go for sectional test as well. अगर तुम्हें लगता है कुछ और चाहिए तो सेक्शनल टेस्ट ले लो, और उसके आगे अगर जरूरत पड़ती देन वील डिस्कस. ठीक है. Also, if your score in VA is 40s, DILR is 40s, Quant is 20s, you are already standing at a 100 score, a score of 100, and that's an awesome score. Why you are worried? पूनम देखो, सारे सेट देखने में ना टाइम लगता है. ठीक है. और अगेन सेट देखने में, सेट देख के जजमेंट क्रिएट करने में ना, इट्स नॉट इजी टू क्रिएट अ जजमेंट इन अ सेट इन 3 मिनट्स और 2 मिनट्स. गरिमा, एवरीथिंग इज वट एवर आई एम सेइंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माई जोन. सीएल का जो पोर्टल है ना, माई जोन, जहां से क्लासेस और इन सब का एक्सेस होता है, माई जोन पे सब अवेलेबल है. ठीक है ना. हाँ. सो बेसिकली सबसे बड़ा दिक्कत ये है. बट उत्सव, यू आर सेइंग वन थिंग ना, कि तुम्हारा डीआईएलआर का स्कोर 40s में है. एक तो अनोनिमस के नाम से मत भेजो मैसेज. सेंड मी विद योर नेम, आई टेल यू. देखो, आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होता. इन डीआईएलआर मैक्सिमाइजिंग द स्कोर इज डिफिकल्ट. आई एम सेइंग गेटिंग a score of 40s in DILR is a most painful thing. Getting a score of 40 in QA is pretty much doable. Getting a score of 40 in VA is pretty much doable. Getting a score of 30 in DI is pretty much doable. Getting above 30 becomes a lot painful. तुम मतलब क्वांट में 20 से 40 जितने में पहुंचोगे, जितनी मेहनत में, उतनी मेहनत में तुम 30 से 35 तक ही पहुंचोगे डीआई में. ये प्रॉब्लम. सो इन डीआई गेटिंग a score of 30 is pretty much decent. ठीक है ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. गेटिंग a score of 30 is good. 30 खराब स्कोर नहीं है डीआई में, बहुत बढ़िया स्कोर है. ठीक है. Decent means, I would say, I'm sorry, or I wouldn't say decent, it's good actually. At a score of 30, you are already standing at 99 percentile in DI section. Now, year wise, if you look at year wise, analytical reasoning, number based logic, data comprehension, DI. So, DI, the graph is this. The thing that we have seen in chart is similar to that. But every year you can see what kind of questions has been asked. If you look at set theory, people are worried about set theory a lot. Set theory में देखो, number of sets, sometimes it is zero, sometimes it is high. And if you look at the graph, after 2022, set theory is continuously on a decline. एक सेट से ऊपर आया ही नहीं. 25 में एक भी सेट नहीं था, 24 में एक सेट था, 23 में एक भी नहीं था. ठीक है. डीआई इज, मतलब आना चाहिए, क्योंकि डीआई कभी भी कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे जो एक एरो बता रहा है, ये ग्राफ,
ये बोल रहा है कि कभी भी बहुत सारे सेट आ सकते हैं डीआई के. सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन स्किप. सेट थ्योरी अगेन आई वुड से कि कभी भी दो तीन से ज्यादा सेट आए ही नहीं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्लॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ईयर. इन अ ईयर यू आर गेटिंग थ्री सेट्स, इसका मतलब दे विल बी स्पेंड अक्रॉस द स्लॉट्स. तो एक स्लॉट में एक सेट या मैक्सिमम ऑफ दो सेट सेट थ्योरी के, इससे ज्यादा नहीं आएंगे. ठीक है. अभी उत्सव, यू हैव इनफ टाइम लेफ्ट. I would say you have enough time left. So don't worry, don't panic. The first thing you need to think of कि stop panicking, stop worrying. ठीक है, स्ट्रेस से पढ़ाई नहीं होती है. ठीक है, everyone is stressed out. स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं होती है. Trust me on this. I have taught a lot of students. The most carefree students scored the highest. I had two students who used to come to class once in a while and they are pretty much chilled out. और उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की. वन गाय गॉट 95 परसेंटाइल, अनदर गाय गॉट 97. उन्होंने जिस हिसाब से पढ़ाई की थी उस हिसाब से तो वो 85 लायक थे, लेकिन दे गॉट 97 95. प्रीटी मच चिल्ड आउट. जितना आता था उतना उन्होंने पेपर में कर लिया. ठीक है. एकांत, यस, डीआई इज समथिंग दैट शुडंट स्किप because it can suddenly shoot up. You are suddenly going to see there are going to be uh, two sets of DI in your slot. ठीक है. DI is generally pretty more manageable in the exam as compared to your LR. तो अगर वो आ गया, why not make use of it. LR पे फोकस होना चाहिए because chances of getting DI is not a lot. So main focus तो DI पे होना चाहिए. Because if you look at, again, I'm telling you, look at the data. LR dominance. LR is close to 80%. अभी तक आया है. अगले साल क्या होगा? अगले साल, every year, if you see, there is going to be some change in the pattern. Till 2023, LR was everything. LR was there. But 2024, story changed. 2025, it was back to basics. Again, DI was over. Only LR was there. And if you look at 2024, 2024 had the easiest LR uh, in all the years. We consider 2024 as an outlier of the data. इतना आसान था 2024 DI में. The first time we had a cutoff at 99 percentile that was more than 35 in section of DI. That was in that year it was 38. बहुत ज्यादा था 2024 में. अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू लुक एट 21 22 23 25, डीआई में 99 परसेंटाइल आपका 30 के नीचे ही रहता है. इन 2024 इट वाज 38 because paper was way too easy. You are going to read the question, you are going to get the answer quickly. So इस टाइप के उसमें हमको लूज आउट नहीं करना है. देखो, उत्सव, आई टेल यू वन थिंग. इन डीआई जनरली योर क्या कहते हैं, कैलकुलेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते यहाँ कैलकुलेशन इंटेंसिव हो. ठीक है. पिक 2024 फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, मतलब मैनुअल कैलकुलेशन से आराम से आंसर आ जाता है. ठीक है. अगेन रिमेंबर, इन द सेक्शन ऑफ डीआईएलआर ऑब्वियसली देयर इज टू मच कैलकुलेशन इन्वॉल्व, लेकिन वो नंबर्स बड़े नहीं है, इक्वेशन ज्यादा है, इसलिए डीआई थोड़ा सा वैसा होता है. पेनफुल वैल्यूज बहुत कम आती है. ठीक है, कैट में पिछले साल 2025 को हटा दो तो जनरली पेनफुल वैल्यूज आती भी नहीं. ठीक है, लेकिन पिछले साल ये. तो अगेन, द द टू थिंग्स दैट आर मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर यू. द फर्स्ट थिंग, आई डोंट नो वेदर यू हैव अ लैपटॉप और अ पीसी. इफ यू हैव अ लैपटॉप, आई वुड से बाय अ माउस. इफ यू हैव अ पीसी, you already have a mouse. ठीक है. Second thing and most important thing, practice on screen. And when you are solving a set, you are using calculator. I would say use it with mouse.
माउस के साथ आप अपने उस पर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका हाथ सेट हो जाएगा। वो सब लोग कहते हैं ना कि वो कैट का माउस बड़ा खराब होता है, इतना खराब भी नहीं होता यार। मैंने बहुत बार दिया है, ठीक सा होता है। सो बिकॉज पीपल आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, सौभाग्य नॉन कैट डजेंट हैव कैलकुलेटर्स। I'm not sure. I don't remember whether that has or not, but Snap definitely doesn't have. Your NMAT doesn't have. So those kind of exams don't have calculator. So I said I don't remember that has or not, but NMAT and Snap definitely doesn't have calculator. That has. ठीक है। Ekan, that happens in some centers. Luckily, I have been given the exam center as TCS on. So TCS on में जनरली हमेशा चला है। ठीक है, बाकी सेंटर्स पे स्कूल्स वाले जो पढ़ते हैं वो आई एम नॉट श्योर उनमें कैसे काम करता है, बट उसमें चलता है। ठीक है। cat, obviously cat has. So and second, and this is second point कि भैया वहां पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। थर्ड इज buy a lot of notepads। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बाई नोटपैड्स। जो आपका नोट पैड होता है वो नोट पैड का साइज बहुत छोटा होता है एग्जाम में। जो आप एक अपनी नोटबुक में आप जब सॉल्व करते हैं तो उसमें स्पेस बहुत होता है आपके लिए टेबल बनाने के लिए। नोट पैड में स्पेस ही खत्म हो जाता है, तुम बड़ी टेबल बना ही नहीं सकते। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डेली डोज के क्वेश्चन उठा रहे हो, आप मॉक के उठा रहे हो, आप या फिर कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हो, आप नोट पैड पे सॉल्व करिए उसको। ठीक है, और जब आप मॉक दें तो नोट पैड ही यूज करिए। बिकॉज दिस हैज हैपेंड टू मी आई थिंक इन 2016। सो एज अ टीचर आई स्टार्टेड राइटिंग कैट इन 2016। तो क्या हुआ, सो आई वाज सॉल्विंग कंटिन्यूअसली और बीच में मेरे चार आंसर खो गए कि मैंने आंसर कहाँ लिख के रखे थे। आई स्टिल डोंट मार्क एवरी आंसर देन एंड देयर। मैं पहले सॉल्व करता हूँ फिर बाद में मार्क करता हूँ। सो उसमें चार क्वेश्चन खो गए, आंसर ही खो गए। उस टाइम 1 घंटे का एग्जाम था, आई हैड लास्ट 4 मिनट्स लेफ्ट। तो मैंने सोचा आराम से मार्क करूंगा और वो खो गए। नोट पैड में ये दिक्कत है, आप कुचर 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 करते रहते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। लुक एट द डेटा। DI 14%, टू पेपर्स 86%। LR, I am Calcutta, very high 32%, 68। I am Kozhikode, again decently enough, one fourth of DI and three-fourth of LR। Indore, this is what is intriguing. So, what you should expect this year? This is the part। मेन पॉइंट तो यही है। इंदौर 13 and 87। मतलब 2 सेट के आसपास है आपका DI, बाकी सारा है LR। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे केस है, इस केस में DI के चांसेस तो कम है। ठीक है। इंदौर अगर बना रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग नो DI, वेरी लेस। इसका एक लॉजिक मैं आपको और भी देता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट आई एम इंदौर ऑल्सो कंडक्ट्स एग्जाम कॉल्ड IPM, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, आफ्टर 12th। Sarvansh, there is exam IPMAT, right? So IPMAT, हाँ, after 12th you can directly go to do BBA plus MBA. So 5 years exam, 5 year course, BBA plus MBA, right? Integrated program. So in that exam, if you are going to look at DI, IPMAT, right?
सो इन दैट एग्जाम इफ यू आर गोइंग टू लुक एट डीआई का एक सेट दो सेट आते हैं. दे हैव उसका जो पैटर्न है. ओ नाइस नित्या. सो उसका जो आईपी मैट का पैटर्न है, आईपी मैट के पैटर्न में यू हैव वन सेक्शन दैट इज कॉल्ड शॉर्ट आंसर. शॉर्ट आंसर इज लाइक योर थीटा. सेकेंड सेक्शन इज एमसीक्यू. एमसीक्यू इज लाइक योर एमसीक्यू है, ठीक है, बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह ये सब पूछते हैं. दे आस्क वन सिंपल एलआर सेट. डीआई बहुत रेयरली पूछते हैं उसमें. एलआर ही एलआर पूछते हैं. सो दिस टाइम ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि डीआई नहीं पूछेंगे. इंदौर तो नहीं पूछेगा. ये मेरा रीजनिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ. दिस इज द डेटा फ्रॉम एक्चुअल कैट. जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ 13% एंड 87%, दैट इज फ्रॉम एक्चुअल कैट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई एम लुकिंग एट आईपी मैट इंदौर, उसमें भी डीआई नहीं आता. इस बार मैंने आईपी मैट का पेपर देखा, उसमें भी डीआई नहीं है. ठीक है. सो आई दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन दैट मोर लाइकली दे आर नॉट गोइंग टू आस्क डीआई. एक सेट आएगा किसी एक स्लॉट में, एक या दो सेट आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए. डज इट मेक सेंस? सो आई हैव सॉल्व्ड ऑल द पेपर्स ऑफ आईपी मैट एज वेल. उसमें भी आई हैव रियरली सीन अ डीआई सेट. they don't ask a lot of DI. Mainly it is LR, एक सेट आता है सिंपल सा. So this is the case. Does it make sense? क्या लगता है आप? अभी ना एक, मैं तुम्हें अगर तुम बोलोगे तो आईपी मैट के मैं एलआर के सेट तुम्हें भेज दूंगा. यार 3-3 मिनट के सेट है वो. 3-4-5 मिनट के सेट है यार वो. तुम फंडा में फंडा बुक के जो फंडामेंटल बुक तुमको दी आ, हाँ नहीं सर्वांश, मैंने देखो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली है कि डीआई जो है वो छोड़ने वाली चीज नहीं है. क्योंकि डीआई पे इतना स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए कि 24 में शॉर्ट अप ट्रेजेक्ट्री ही चेंज हो गई. ठीक है. इन 24 इट वाज कैलकाटा. कैलकाटा ने पहले भी थोड़े ज्यादा दिए हुए हैं. इफ यू लुक एट दिस, इन 2018 कैलकाटा हैज गिवन 3 डीआई सेट. इन 2024 दे हैव गिवन 7 डीआई सेट. उस टाइम 16 क्वेश्चन 16 सेट थे, इस बार 15 थे. 15 में उन्होंने 50% डीआई दे दिया. ठीक है. मैं इसमें कभी नहीं कह रहा कि चांस नहीं है. मैं ये कह रहा हूँ कि परसेप्शन मेरा ये है कि डीआई एलआर ओरिएंटेड होगा, लेकिन डीआई स्किप नहीं करना है. बिकॉज 2024 हैज ऑल्सो टॉट मी वन थिंग. डीआई सेट अगर आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत आसान था. एंड श्रिया, डीआई इज मोर और लेस, डीआई में इंप्रूव करने का एक ही तरीका है. योर थॉट प्रोसेस शुड इंप्रूव. एंड थॉट प्रोसेस कैसे इंप्रूव होगा? सॉल्व अ लॉट ऑफ पजल्स. एंड सेकेंड थिंग, this is the problem I have heard from a lot of students, and that is one problem. People consider LR sets as RC. In RC they skim, in LR also they skim. नहीं करना है वो. In RC you need to skim, in LR you need to read and read thoroughly. Because if you miss a point, it means you have simply wasted 5 minutes on one point. In recent years, I think, I don't remember, it is 22 or 23. In one set, I have read average instead of median. I wasted 10 minutes. मेरे साथ खुद के साथ हुआ ये. मुझे लगा एवरेज है, मैंने मीडियन को मीन समझ लिया, और 10 मिनट चले गए उस सेट में. सो थॉरो रीडिंग इज इंपॉर्टेंट इन एलआर सेट. रिमेंबर सेकेंड पॉइंट, बिफोर रीडिंग क्वेश्चंस डू नॉट पिक अप पेपर एंड पेन इन एलआर सेट and make it a habit. If you are unable to make it a habit, your score won't improve. Simple. There is no specific concept, but yes, there are specific type of questions. Approach कुछ नहीं है. एलआर जैसे समझ में आएगा वैसे ही होगा. सर्वांश, व्हाट इज टफ? मेरी तो आदत है. सर्वांश, मैं इन्फो एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं रहा हूँ. मैं इन्फो इन्फो एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर रहा हूँ. मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. और एलआर का सेट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताते हैं कि वो डेफिनेट अरेंजमेंट है या इनडेफिनेट अरेंजमेंट है. पहली चीज तो यही क्लियर होनी चाहिए. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि
स्टार्ट सॉल्विंग ए सेट और तुम्हारी टेबल कंप्लीट नहीं होती है और तुम उसी पे स्ट्रगल करते रहते हो, उसके बाद जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुम्हें अचानक रियलाइज होता है ये तो इनकम्प्लीटेड टेबल का सेट है। दिस इज ए केसलेट। सो इसीलिए इस क्वेश्चन पढ़ने से बहुत आइडिया लग जाता है, रटना नहीं है क्वेश्चन। हाँ पूनम, और क्वेश्चन पढ़ने की जो आदत होती है ना, उससे बहुत सारी चीजों के का हमें आइडिया लग जाता है सेट के बारे में। सेट का कई बार अप्रोच दे देता है क्वेश्चन तुम्हें। ठीक है, कई बार क्या होता है, आई आई विल गिव यू कपल ऑफ सेट्स जहां पे तुमने क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ लिए ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा सेट, 5 क्वेश्चन तुम्हारे 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ के तुमने बनाना शुरू किया तो। 5 मिनट का सेट वो, और अगर तुम उसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे इट इज गोइंग टू टेक 20 मिनट्स। सो क्वेश्चन पढ़ने का सबसे बढ़िया अप्रोच ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ो, और जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और उसको टेबल फिल करोगे, तुम्हें ये पता होगा कि वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। मैं तुम्हें अभी एक रैंडम स्टेटमेंट दे रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आई एम अरेंजिंग 10 पीपल इन 10 फ्लोर्स। ठीक है, आई गॉट 10 पीपल एंड आई हैव 10 फ्लोर्स। ठीक है, 10 लोग 10 फ्लोर पे रह रहे हैं, हर फ्लोर पे एक आदमी रह रहा है। ठीक है, वन ऑफ माई क्वेश्चन इज हु लिव्स ऑन फ्लोर 3, ए, बी, सी, डी। मतलब फ्लोर 3 पे इन चार में से कोई एक रह रहा होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं रह सकता। एग्रीड ऑन दिस? तो फ्लोर 3 पे तुमने 6 वैल्यूज तो रिजेक्ट ही कर दी क्वेश्चन पढ़ के। एग्रीड और नॉट? तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ के करना शुरू करते हो ना, तो यू, ठीक है, सो जब तुम क्वेश्चन पढ़ के करते हो ना, तो उससे तुम्हारी वैल्यूज एलिमिनेट होती चली जाती है, तुम्हारे केसेस खत्म होते चले जाते हैं, उससे स्पीड बढ़ती है। जब लोग कहते हैं ना कि मुझे बहुत टाइम कर रहा है, बहुत टाइम लग रहा है सेट सॉल्व करने में, क्योंकि तुम क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ रहे हो, तुम ऑप्शन की हेल्प ही नहीं ले रहे हो सेट सॉल्व करने में। अरे ऑप्शन की हेल्प लो। This is how you improve your score. Otherwise, your score will not improve. If you are picking, and the best part about the questions is they also tell you which is a good set to solve. तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि एक सेट को कब छोड़ना है अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ना नहीं शुरू किया, तो तुम्हें कभी भी आइडिया नहीं लगेगा कि दिस इज नाउ इट इज द टाइम टू लीव द सेट। सो दिस इज समथिंग, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, आई एम जस्ट सिंपली आस्किंग कि भैया पहले पढ़ लो, उसके बाद समझेंगे। मेक सेंस? थीटा हैवी में भी पीयूष, इफ, नाउ देखो, देर आर सर्टेन स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग। ठीक है, इफ यू आर इन द इनिशियल स्टेज, मतलब स्टार्टिंग में पहली बार कर रहे हो, देन आई वुड से सॉल्व सेट। ठीक है, और उसमें कितना टाइम लग रहा है, आई डोंट केयर। इट मे बी 10 मिनट्स, इट मे बी 20 मिनट्स, इट मे बी 30 मिनट्स, इट मे बी 40 मिनट्स। ठीक है, इट मे बी 1 आवर। अगर तुम अभी अभी शुरू कर रहे हो सेट सॉल्व करना, आई डोंट केयर, 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, एक दिन के 2 सेट हो रहे हैं, ठीक है, 2 घंटा देके 2 सेट हो रहे हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, अगर तुम्हें 1 घंटा लग रहा है, सौभाग्य जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो अगर तुम्हें अभी 1 घंटा लग रहा है, सो जस्ट आफ्टर सम डेज इट शुडंट बी 1 आवर, इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 30 मिनट्स। यू शुड अंडरस्टैंड, एनालाइज एवरीथिंग। ठीक है, then after that it should be on an average, remember this, on an average 15 minutes, on an average। ठीक है, एक, अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें एक सेट को सॉल्व करने में 30 मिनट लग रहा है, ठीक है, एक सेट के लिए हो सकता है, देर आर सम सेट्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट, वेरी लेंथी, 30 मिनट्स के सेट है, बट ऑन एन एवरेज का मतलब देर आर लॉट ऑफ सेट्स दैट कैन बी सॉल्व इन 10 मिनट्स एज वेल। There are going to be some sets that are going to take you 15 minutes, there are going to some sets that are going to take you 20 minutes, but अगर तुम एवरेज आउट करोगे, सो एवरेज आउट जो टाइम होना चाहिए वो तुम्हारा 15 मिनट होना चाहिए।
एक सेट को सॉल्व करने में। और मैं ये भी बोलूंगा कि सेट को टारगेट करना ही बंद कर दो। मैं कह रहा हूं कि तुमने 10 मिनट के अंदर एक सेट से 2 से 3 क्वेश्चन निकाल लिए, यू आर गुड टू गो, खत्म, यू हैव ऑलरेडी वन द गेम। And Piyush, if it is taking you 15 to 20 minutes, I would say practice in that way, the way I have told you, your time will improve. Yes, Saubhagya. Read the set, read the question, read the options, then start working on your pet. Yes. सेट पढ़ो, एंड सेट पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पेपर पेन उठाओ, समझो क्या करना है। बिफोर दैट, until unless you have read the set, read the questions, कुछ मत करो। एंड a lot of times you are going to see one answer, two answer directly. सेट पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक दो क्वेश्चन दिख जाता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम प्रैक्टिस करोगे वो दिख जाएगा। उत्सव, रिमेंबर दिस, व्हाट आई हैव सेड, यू नीड टू एवरेज आउट। ठीक है, हमेशा एवरेज आउट होता है। हाँ, दैट्स अ गुड गुड थॉट प्रोसेस सजल। लेकिन अगेन, वेन एवर आई सॉल्व अ पेपर, रिमेंबर दिस, when I solve a paper, I more or less go for all 5 sets, all 5 sets, पांच के पांचों टारगेट ही करके चलता हूँ। बिकॉज इट्स नॉट लाइक आई एम दैट मच इंटेलिजेंट के पांच के पांचों कर लूंगा 40 मिनट में, मेरे से नहीं होगा, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं टारगेट पांच करके चलता हूँ। 3 sets, एटलीस्ट 3 sets, गिव मी आइदर 1 or 2 क्वेश्चन, पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, खत्म। एक सेट मेरे से हो जाता है पूरा, ठीक है, एक सेट मेरे से आधा हो जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन, ये मेरे लिए सेट है, मोरलेस। नॉट रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस इज ब्लंडर, सो आई स्टैंड जनरली 12 क्वेश्चंस अराउंड, पांचों सेट से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। 12 क्वेश्चन, कभी 13 हो गए, कभी 14 हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे 22 के 22 हो गए या 20 के 20 हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे भरोसा है ऐसा होगा भी नहीं। ठीक है, सो 12 13 करेक्ट अटेम्प्ट्स आई एम सिटिंग इन 40 मिनट्स, एंड दिस इज हाउ द एग्जाम शुड बी अप्रोच्ड। क्या देखो उत्सव, आई एम नॉट सॉल्विंग ऑल सेट्स, दैट्स द पॉइंट यू आर नॉट गेटिंग। आई एम नॉट सॉल्विंग एनी सेट, मैं एक सेट या 2 सेट सॉल्व कर रहा हूँ, उससे ज्यादा कर ही नहीं रहा हूँ। तुम अभी तक वो चीज ट्राई करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तुम उसको इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो कि व्हेन यू आर गोइंग टू रीड अ सेट एंड रीड द क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन के आंसर दिखते हैं। हैव यू एवर ट्राइड दैट? ट्राई इट। 6 से 7 मिनट में सेट सॉल्व नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, एक ही दो होंगे बस। पूरा का पूरा सेट सॉल्व करने में 15 मिनट ही लगेगा, मुझे भी लगता है, लेकिन 6 7 मिनट में एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं और सेट दे देते हैं ऐसे फ्री के क्वेश्चन। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू। आई एम रीडिंग ऑल सेट्स। एकांत, 2017 to 2025 इज नॉन निगोशिएबल। ठीक है, ये नॉन निगोशिएबल है, बाकी तुम क्या करते हो दैट्स डिफरेंट स्टोरी। मॉक्स आर नॉन निगोशिएबल, मॉक्स आर नॉन निगोशिएबल फॉर एनीवन, बाकी अपना सब ठीक है। मॉक्स एंड 17 टू ये, मॉक की बात है, सेक्शनल तो श्रद्धा है आपकी, मॉक देने फुल लेंथ मॉक। आप सौभाग्य, I'll tell you this point. I'm not sure how many sets you have came across. हाँ,
हाँ, सारी सेट करनी है, या तो एग्जाम टाइम करोगे या एग्जाम के बाद करोगे, करना तो सब है। मतलब एग्जाम में तो पांचों नहीं होंगे ना। मैंने आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग द एग्जाम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करके छोड़ दो, बट आफ्टर द एग्जाम यू हैव टू सॉल्व एवरी सेट एंड कंप्लीटली। ठीक है ना। सौभाग्य, आई वुड सजेस्ट दैट ट्राई एटलीस्ट, आई वुड से couple of sectional test and you will get a gist of it. Got it, सौभाग्य? देखो, मैं एक प्रोसेस बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये तो प्रायोरिटी हो गया कि ग्रुपिंग, असाइनमेंट, शेड्यूलिंग, नंबर बेस्ड लॉजिक, मैट्रिक्स, दिस इज द प्रायोरिटी। हाई सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी इज नेटवर्क अरेंजमेंट। ठीक है, सेट थ्योरी इज द लास्ट वन। सेट थ्योरी ज्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग है लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि सेट थ्योरी का वो हो जाता है। ठीक है, एनीहाउ, सो नाउ आई वुड से वन थिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ मॉक। ठीक है, लो, लोगों को आई गेट दिस क्वेश्चन अलॉट कि लास्ट के 2 महीने जो होंगे उसमें हर 2 दिन में या हर 3 दिन में एक मॉक देंगे। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता होगा, हाँ, है ना। सो आई टेल यू व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ मॉक। ठीक है, यू राइट अ मॉक, देन यू एनालाइज द मॉक। एनालिसिस का मतलब, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक एनालाइजिंग मीन्स ओनली सॉल्विंग बैक? कितने लोगों को लगता है कि एनालिसिस का मतलब वापस से पूरा सॉल्व करिए? नहीं, analysis should tell you that the questions you have done right, whether there was a better approach for it or not. That is the first thing. ठीक है, second thing, if you are getting it right you need to figure out why you got it right. Second thing, if you are getting it wrong, the question is why did you get it wrong. If you left the question you need to figure out why did you left it. ठीक है, तुम्हें आता नहीं था, तुम्हें लैंग्वेज नहीं समझ में आई। बहुत सारे लोगों को लगता है यू लेफ्ट अ क्वेश्चन बिकॉज यू गॉट इट रॉन्ग बिकॉज ऑफ अ सिली एरर। ठीक है, व्हाट आर सिली एरर्स? कैन समवन डिफाइन मी व्हाट इज अ सिली एरर? पैनिक इज नॉट अ सिली एरर, पैनिक इज अ साइकोलॉजिकल एरर। I took median as a mean, that was a silly error. No, there are things called silly error. For example, you are writing correctly 2 into 3, but by mistakenly you have uh, uh, wrote it 5. ठीक है, दिस इज ए सिली एरर। सिली एरर माइट बी कि यू गॉट द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन बी लेकिन तुमने धोखे से सी मार्क कर दिया, दैट इज ए सिली एरर। ठीक है, सो ये सिली एरर्स है। लेकिन सिली एरर के बाद अलावा तुम ये बोल दो कि तुमने इक्वेशन गलत बना दी, दैट्स नॉट अ सिली एरर, दैट्स अ कंसेप्चुअल मिस्टेक। यू नीड टू फिगर आउट वेदर इट इज अ कंसेप्चुअल मिस्टेक और एक्चुअल एरर। ठीक है, सो एनालाइज का मतलब वेयर यू कैन इंप्रूव, आफ्टर दैट वर्क ऑन द वीक एरियाज। जो तुमने एनालिसिस पे जो चीज देखी उस पे काम करो। ठीक है, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट मॉक, that cannot be done in 2 hours, 3 hours. It is on an average should take 6 to 7 hours at least. पहले मॉक की बात करो, बाद में ये आपका एनालिसिस का टाइम बहुत कम हो जाएगा, पहले मॉक में टाइम लगेगा। उस पे जो आपने एनालिसिस की उस पे काम करो, देन राइट इट अगेन। सो बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ 5 days, 6 days। Otherwise you are simply writing mocks continuously, you are not improving, you will never improve. So write the mock, figure out all the pain reasons, work on that, then repeat the process. अगर तुम उस पर काम ही नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा?
सर्वांश, रीविजिटिंग का मतलब अगला सेम मॉक नहीं देना यार, दूसरा वाला अगला मॉक देना है. You have written Mach 3, next time you need to write Mach 4, not Mach 3 यार. Mach 3 you have attempted twice. एक बार जब तुम दे रहे थे, दूसरी बार एनालिसिस के टाइम पे, अब कितनी बार स्पिन मॉक दोगे यार. So, so revisiting का मतलब now repeat the mock means write the next mock, then write the next mock. So in the start it takes a lot of time. So Utsav, if you haven't done the proper analysis for the those four mocks, then it's time to do it now. Do it. करो. देखो, Shalaka, non-CAT, if I specifically talk about which exam, that is very close to CAT. That is boring. बोरिंग का मतलब कैट इज एक्साइटिंग, 2 घंटा शुरू होते ही खत्म हो जाता, पता ही नहीं चलता. दैट इज 3 आवर एग्जाम, खत्म ही नहीं होता टाइम. ठीक है, इट इज 3 आवर एग्जाम. ठीक है, सो टाइम इशू, द पीपल हु से आई हैव टाइम इशू इन कैट, नो वन हैज टाइम इशू इन दैट. द टाइम इश्यूज आर लाइक खत्म नहीं हो रहा. एनमैट इज, एनमैट इज इजियर, एंड स्नैप इज ऑल्सो इजियर. लेकिन इजियर का प्रॉब्लम ये है कि इट, स्नैप हैज 60 minutes 60 questions. 60 minutes 60 questions means you have to be very quick at solving questions. Quick का मतलब, the, if I talk about the syllabus, if I talk about the syllabus of CAT is the superset of all the exams. आप CAT के लिए जो पढ़ते हो, CAT की क्लासेस में जो होता है वो सब कुछ ही कवर हो जाता है. ठीक है. Ekant, I'm not sure who told you this, but I don't think that is harder than that. It is more or less similar type of thing. ठीक है. So, uh, बेसिकली स्नैप इज अ गेम ऑफ स्पीड. ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है. इट्स मोर और लेस रीड, गेट द आंसर, 3 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे. सौभाग्य, डीएम इज, डीएम वी डू क्लासेस ऑफ डीएम आफ्टर कैट, because we got close to 40 days between CAT and ZAT. So we cover everything. ठीक है ना. Now this is the overall thing. Set theory is declining. Scheduling, in last 4 years, if you are going to see, every year we are getting a set of scheduling. Metrics, suddenly you are going to get a lot of metrics, suddenly you are not going to get any metrics. ठीक है. Now if I am going to see in this graph where I am getting metrics, metrics ज्यादा कहाँ आया है. This is matrix, matrix is the red one. So ये वाली लाइन है. मैट्रिक्स यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे जीरो हो गया, फिर यहाँ भी जीरो है, and it is here. ठीक है. So next year what is going to happen, I don't know. It is pretty much a straight line, so it might go up like this or it might go like this, I don't know. DM practice, but the problem with the ZAT is ZAT doesn't, uh, since last 2 years, ZAT is releasing its own response sheet, answer key, but before that, ZAT did not release its own answer key. DM you can definitely practice from the previous year questions. ठीक है. गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्या ये आएगा अगले साल? 19 to 22 आया है, 23 to 24 नहीं आया. अब अगले साल आएगा या नहीं आएगा, मोर लाइकली आ सकता है. मुझे, मेरी आत्मा कह रही है कि आ सकता है. ठीक है. नहीं भी आ सकता है, आई डोंट नो, बट आई फील लाइक गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज गोइंग टू बी देयर नेक्स्ट ईयर. Sarvansh, roots are, I think, reasonably important. Yes, roots are important. रूट्स के सेट आते रहते हैं हर साल, मतलब हर साल किसी ना किसी एक स्लॉट में एक आध सेट तो आ ही जाता है. सो रूट्स इज इंपॉर्टेंट. सो प्रायोरिटी इज, एलआर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए. ठीक है. डीआई में मतलब ये है कि अगर 24 जैसा आउटलायर आ गया तो ऐसा ना हो कि बाकी लोग कर लें, आपसे ना हो.
ठीक है, सो DI इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, chances are less that you are going to get DI, but DI is what? Nothing much. ठीक है. FIFA World Cup this year, then more likely I think games and tournaments is definitely going to be here. अगर FIFA World Cup है तो आएगा, पक्का आएगा. I think last year we had a difficult set on games and tournament. Uh, I think in 2022, I guess. Last FIFA World Cup was in 22, so we got one in 22. One more than one. तो आना चाहिए. ठीक है. नाउ एनीथिंग एल्स. फीफा दिस ईयर तो आएगा भाई. अब बताओ, अब किसको क्या पूछना है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. नाउ एनीथिंग एल्स. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. डेटा ये कहता है कि इंदौर जो कर रहा है उसमें DI नहीं आता. बट अगेन, as we can see, 24 is an outlier, so 26 can also be an outlier. ठीक है. The approach is standard approach that I have told you. Read the set, read the questions, then pick up paper and pen. If you're not doing that, then I don't think you are not improving. ठीक है. Without analysis, if you are writing second mock again, then you are just wasting your time. Next point is, whenever you are solving a mock or you are doing something like, I would say, आप वो दे रहे हो and you are using a notebook, then again I don't think it's a good idea. In DI set, in the exam, the biggest problem you are going to face is the वो notepad वाली चीज. वो बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है. So basically, if you haven't analyzed any mock so far, start analyzing. आपको गलतियां पता होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए what are your areas of improvement. And those things in DILR sets also going to tell you whether you have picked up a right set or wrong sets, and at what point you need to figure out it is a wrong set and I need to leave now. क्योंकि देखो, what I feel is selecting right set or wrong set is more or less luck based thing, but leaving on time is not luck, it's a skill. So आपके अंदर छोड़ने की स्किल होनी चाहिए. Again, remember, after I have taken the class, I would say, don't leave everything. I always talk about leave it. Don't leave everything. कुछ करना भी है. ठीक है. So somewhere around 10 questions in DILR will fetch you good percentile. So अब आ गया. I would say कि when you are going to write the first mock, then I would say कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा. पहला वाला मॉक जो होता है उसमें इतना पता चल जाता है आदमी को कि 2 घंटे बैठ के दिमाग नहीं चल रहा. So in the first mock, I am not going to worry about the score. I am simply going to say whether you can read a question and figure out what question is saying in the section of quant. Because it is the third section. ठीक है. थर्ड सेक्शन में यू मतलब तुम्हें किया हुआ क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आएगा. बिकॉज इट इज it is very tiring. No, I'm talking about the first section is VARC. You read a lot. In second section, it's DILR. You read a lot, analyze a lot, and third section is quant. So when you are writing the first mock, you are going to realize third section mein I'm already way too tired. So that's the reason I'm saying when you are writing a couple of mocks, you think you are wasting your marks. No, you aren't. So first 2 mocks, first 3 mocks are actually going to tell you that कि quant में knowledge is not everything. It's also stamina. You can watch a movie for 3 hours, you can work on computer for 3 hours, but writing mock for 2 hours is an entirely different scenario than all other things. Got it? वो स्टोरी अलग चेंज हो जाती है. सो इसलिए वो करना होता है. एंड ठीक है. एंड विद दिस लेट्स वाइंड अप. सो टिल देन, थैंक यू. टेक केयर.